Hey guys, welcome back to my channel. So as you can see from the title of my vlog that this vlog is all about living alone in a new city in Malaysia. Well, actually I'm not living alone. I'm living with my baby, as you all know, because I've got a job here. So कुछ सालों के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ और for now I'm kind of single-handedly taking care of a baby, and so is my husband doing in West Malaysia. So थोड़ा सा difficulties तो होती हैं, but then we here for good, right? And this is what was actually the thinking process जब हमने decide किया था कि यहाँ पे move करना है. तो it has been quite a long journey. कुछ महीने हो चुके हैं, and I literally want to take you along and show you week in my life with a baby living alone in a new city. Good morning, guys. It's Tuesday today. I started my week yesterday. I had that intro section shot yesterday. So yeah, it's another day. I did not do much yesterday. I was so tired because I had early morning flight from KL to Miri, and then I directly went to the office, and then I came back, just had my dinner. I bought a Subway for dinner, and then I just went off to bed with my baby. There's a viral season going on over here with all the kids. So my baby is also one of them who's affected with flu and cough. So he had fever the other day, but now he's fine. So looks like most of it is now about to end for him. So yeah, I'm already at his school, and I will just drop him and come back and talk to you later. So I got back from work and I couldn't record much, and this is Wednesday morning, brushing my teeth, and this is my OOTD. Hey guys, so आज लेबर डे था और मेरा दिन काफ़ी जल्दी शुरू हुआ था. At 7 o'clock I woke up and then I cleaned the house. उसके बाद फिर बच्चे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, and today वो आज अपने आप खड़ा होने लगा. So that is something really exciting news for us because I was thinking he will crawl, but then he has just skipped that step, which is in a way good, in a way bad, because I've never seen my sons crawl ever. Like even my firstborn never crawled, and my secondborn is just not willing to crawl. So yeah, I mean both my boys have skipped that step. So I kind of am happy and sad also because I'm not seeing that milestone completion for the longest of time. Anyway, so that's that. उसके बाद फिर हम लोगों को ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, तो मैं अपने बेबी के साथ गई थी यहाँ के एक ग्रोसरी स्टोर में सारा सामान लेने के लिए, बिकॉज apparently last weekend I was in KL and I went to West Malaysia to visit my son and my husband. So I did not have any groceries left. तो मैं मंडे को आई and right off the airport I went to work, and उसके बाद I was so tired that I couldn't buy anything. And then Tuesday को भी मेरा काफ़ी occupied day था, तो I literally was late to pick up my son also from his daycare center. तो इसलिए फिर मैं वहाँ से फिर घर लौट आई, and I just had something, and then we had some issues with one of the airlines, and I mean they kind of booked me on the same flight on the same day twice, and they charged me for that. There was some miscommunication, so I went to the airport और फिर उधर से ही I just grabbed a Mary Brown का veggie burger, and that was about it for Tuesday. And then today started pretty early. मैंने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए दलिया बनाया था, एंड दैट्स व्हाट आई हैड इन लंच एंड डिनर बोथ. एंड कल के लिए खाना बनाना था, हाउएवर आई हैव नो टाइम लेफ्ट. इट्स ऑलरेडी 10:30 नाउ एंड आई शुड बी स्लीपिंग बाय नाउ बिकॉज मैं यूजुअली सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाती हूँ. So well, I'm still about to finish a lot of things. मेरे ये groceries आके मतलब ये सब्जियाँ हैं जिसको मुझे धो के रखना है, and I have to set up the bag for tomorrow. I have to set up baby bag for tomorrow. And घर में अंधेरा है थोड़ा because baby सो रहा है. तो a lot of things to do before I literally go to bed.
बट या सो ओवरऑल इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे. फिर मैं ग्रोसरी शॉपिंग से आने के बाद फिर one of my colleagues, she wanted to take me around and she wanted to show me the bazaar over here. I went to this Kawai Bazaar not as a vendor but as a visitor and बहुत ही मज़ा आया. I tried and tasted that local coffee here which was amazing और फिर just stroll around किया to find out कौन कौन से vendors हैं इस market में, but it was an amazing experience. एंड देन आफ्टर मैं अपने बेबी के साथ घर आई. घर आके जब मैं घर आई तो यहाँ पे कुछ इशू चल रहा था मेरे एक्सेस के साथ. एवरी बिल्डिंग हियर इन मलेशिया हैज़ इट्स ओन एक्सेस कार्ड और एवरी फ्लोर हैज़ इट्स ओन एक्सेस कार्ड. तो मेरे एक्सेस कार्ड के साथ कुछ इश्यूज चल रहा था विच आई सॉर्टेड आउट. तो उसको सॉर्ट करने में कम से कम नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया. सो बाय द टाइम आई रीच होम इट वॉज ऑलरेडी 8:30 और 8:45. उसके बाद फिर घर आके फटाफट खाना गर्म किया, हाथ पैर धोए, बच्चे के कपड़े चेंज किए, उसको फ्रेशन अप किया. देन ही वॉज वेरी स्लीपी बिकॉज यूजुअली ही स्लीप्स बाय 7:30 और 8 इन द नाइट. हाउएवर आज थोड़ा सा लेट हो गया था उसको सोने में, तो ही वॉज वेरी क्रैंकी एंड स्लीपी. तो आई हैड टू पुट हिम टू बेड. देन आई हैड माई डिनर which was dalia which I had cooked early in the morning. However मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था कि मैं 2 मील और कुक कर लूँ because I may not get time because जब मैंने ब्रेकफास्ट ही बनाया it was almost like 10:30ish और मैंने ब्रेकफास्ट ही 11 बजे किया था. तो I pretty much had a clue that मुझे रात में कोई काम करने का टाइम नहीं मिलेगा. However I did want to cook for tomorrow morning which couldn't happen. तो प्लान्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए. अगर कार्ड चल जाता मेरा एक्सेस कार्ड तो इट वुडंट हैव बीन अ प्रॉब्लम. थोड़ा सा टाइम बच जाता एंड दैट टाइम आई वुड हैव यूटिलाइज्ड फॉर कुकिंग फूड. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं तो फिर इसलिए आई कुडंट कुक. सो अभी भी वाइंड अप चल रहा है. अभी भी बच्चे को सुलाया ही है एंड फिनिश्ड माई डिनर एंड देन अभी थोड़ा सा सफाई करनी है. आई हैव टू वॉश द यूटेंसिल्स जो सिंक में रखे हुए हैं एंड देन एज आई सेड आई हैव टू वॉश all the groceries here, set the bag for tomorrow, etc. So काफ़ी टाइम लगने वाला है तो let's just start doing it and finish it off as soon as possible. So as you can see guys, मैंने सब कुछ कर दिया है. Washed the vegetables, cleaned the utensils, packed the bags for tomorrow. It's time to go to bed. 11 बज चुका है. So I hope I'll be able to wake up early tomorrow morning. 5 बजे तो नहीं, probably 5:30 बजे तक उठने की कोशिश जारी रहेगी. Meanwhile I'll call this day off now and I'll see you tomorrow. Morning guys. It is Thursday morning और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं. मेरा अभी भी कार्ड का इशू सॉल्व नहीं हुआ है तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई मुझे आके नीचे ले जाए बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. ऑलराइट गाइज, मैं अब ऑफिस पहुंच चुकी हूँ. आई कुडंट शूट मोर बिकॉज उस वक्त कोई आ गया था मुझे नीचे ले जाने के लिए. तो फिर मैं फट से मैंने कैमरा ऑफ किया. मैं जस्ट नीचे गई बिकॉज थोड़ा सा वियर्डनेस हो गया है. मेरा कार्ड चल नहीं रहा है 2 दिन से एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सेस माई फ्लोर विच इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है. तो मुझे हर बार रिसेप्शन पे कॉल करना पड़ता है एंड समबडी कम्स अप टू फेच मी. अभी ऑफिस में हूँ एंड एज़ यूजुअल मेरे ऑफिस में आई डोंट नो वाई फॉर सम रीज़न मैं ही हमेशा पहली होती हूँ. कोई भी नहीं आया होता है. तो अगेन इट्स लाइक द सेम. आई एम इन एन ऑफिस विच इज़ सो खाली एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क.
जा रहे हैं मेरे बेबी से मिलने। बेसिकली मैं उसके पास हर आफ्टरनून जाती हूँ। आई एम स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग, तो मैं उसको हमेशा एवरी आफ्टरनून आई काइंड ऑफ गो एंड feed him and also play with him for a while. मेरे बच्चे का जो डे केयर है वो यहाँ से बहुत ही पास है। तो मैं यहाँ से आई फ्रॉम माई वर्क प्लेस इट्स लाइक हार्डली 10 minutes ऑफ ड्राइव, सो आई विल यूजुअली मेक इट अ पॉइंट दैट आई गो एवरी डे। बट आज का दिन थोड़ा सा मैं लेट हो चुकी हूँ बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। यूजुअली मैं उसके पास 12 बजे जाती हूँ, तो दैट टाइम इट वॉज वेरी हैवीली पोरिंग, तो उस वक्त मैंने अवॉइड किया जाना। बट नाउ इट्स अबाउट 2 एंड आई एम गोइंग टू द प्लेस। हे गाइस, आई जस्ट केम होम। मैं बेबी को लेके घर आई हूँ और आप पीछे देख सकते हैं सनसेट हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मेरे घर के सामने एक बाज़ार लगा हुआ है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी गुड, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे जाने के लिए, बट आई वांट टू शो यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। सो दैट्स द बाज़ार। इफ आई जूम इन, ये आपको दिख रहा है, ये बाज़ार है। यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं और यहाँ पे गवाई फेस्टिवल होता है जो बेसिकली हमारे दिवाली की तरह ही है इनके लिए भी। इट्स अ बिग फेस्टिवल, शायद फार्मर्स या हंटर्स कम्युनिटी का फेस्टिवल रहता ही है। सो बहुत सारी जगह पे ऐसे बाजार लगते रहेंगे नेक्स्ट 1 month तक। गवाई मंथ हैज़ बिगन और जो फेस्टिवल के डेट्स हैं वो है 1st और 2nd, ऐसे जून में है 1st 2nd ऐसे कुछ, लेकिन 1st मई से ये लोग ने सारे बाजार लगने यहाँ पे शुरू हो गए। हे गाइस, सुबह के 8 बज रहे हैं एंड इट्स अ फ्राइडे और दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। मेरा बेबी को मैं छोड़ने जा रही हूँ। प्लस टुडे वी हैव अ ऑफिस पार्टी। वन ऑफ माय बॉसेस बर्थडेज जस्ट was celebrated at the office, so उसके बाद मैंने ऐसे जनरली पूछ लिया कि पार्टी कहाँ दे रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर पार्टी पे चलते हैं सब, बिकॉज इवन ही इज़ लाइक यहाँ पे अकेले ही रहते हैं वो भी। उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, वो फिलीपींस के हैं, तो उनकी फैमिली फिलीपींस में है, तो वो भी यहाँ पे मेजरली अकेले ही रहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हमारी खुद की टीम के साथ टाइम स्पेंड किया जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो हम लोग अबाउट 20 और पीपल हैं जो हम लोग सब जाने वाले हैं आज रात में डिनर पे। देयर इज दिस अमेजिंग बोट क्लब हियर, वहाँ पे हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। तो एंड यू नो व्हाट, वहाँ पे डिनर पे मुझे हमेशा कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी मेकिंग सम न्यू फ्रेंड्स देयर एज वेल, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने कुछ तो नए फ्रेंड्स बना ही लिए थे। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट्स डिनर एट दिस ब्यूटिफुल बोट क्लब एंड वहाँ पे ब्यूटीफुल सनसेट्स देखने लोग जाते हैं, लेकिन वी आर गोइंग एट अबाउट 7:30 विच विल ऑलमोस्ट बी नाइट ओवर हियर। तो हमें सनसेट तो नहीं देखने मिलेगा, बट होप कि मैं कुछ एरियाज आपको वहाँ के दिखा सकूँ, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो सी यू लेटर इन द डे। So due to some unforeseen circumstances, ये dinner cancel करना पड़ा था and it was postponed to next week. However, this week was very eventful, जैसे कि मैंने आपको पूरे हफ्ते के vlog में बताया कि मेरा एक्सेस इश्यूज़ चल रहा था, फिर मेरे फ़्लाइट सीट्स इश्यूज़ चल रहे थे डबल पेमेंट को लेकर एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड देन बहुत ही इवेंटफुल वीक इसलिए भी था क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, विच वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड हियर्स अ ग्लिम्प्स ऑफ द डांस, द इवेंट दैट वाज टेकिंग प्लेस ऑन दिस पर्टिकुलर डे। यहाँ पे ये फार्मर्स का ये गवाई फेस्टिवल रहता है, तो दीज काइंड ऑफ डांसेस आर वेरी कॉमन। जैसे स्पेशली जैसे चाइनीज़ न्यू ईयर के वक्त ड्रैगन डांस रहता है, उसी तरीके से ये फार्मर्स डांस रहता है ड्यूरिंग गवाई फेस्टिवल। सो हियर्स अ नाइस लिटिल ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट एवर हैपेंड इन आवर यूनिवर्सिटी। Hey guys, it's 3 o'clock in the afternoon. अभी मैं थोड़ा सा काम के लिए निकली हूँ। मैं मॉर्निंग में पहुँची, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे जो मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद फिर मैंने अपने काम ख़त्म किए एंड देन आई वेंट टू माय बेबी फॉर अ व्हाइल एंड देन आई हैड माय लंच
and then I went back to my office, did some work, and now I'm heading towards the airport because apparently मुझे one of the flights ने एक ही प्लेन में 2 बार बुक किया है in the same seat and they have charged me twice for that. So I'm just heading to the airport to rectify this issue. मैंने कोशिश की थी मैं ट्यूसडे को ही रेक्टिफाई कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि उनका थोड़ा सा उनका वर्किंग आवर्स थोड़े से ऑड है, 10 to 5 है, जिस वक्त एक्चुअली मैं भी ऑफिस में होती हूँ. सो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लिटरली गो ड्यूरिंग दैट आवर. सो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम 5 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ और इनके साथ ये चीज़ रेक्टिफाई कर लूँ. एंड दे आर रिफंडिंग द मनी, दे आर एक्चुअली जस्ट गिविंग आउट द क्रेडिट्स. तो अभी कुछ पता करना है मुझे कि रिफंड भी होता है तो कैसे होता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक एंड ऑल दैट थिंग्स. So as soon as I sorted the issue with the airlines, I went back home and then I went to the bazaar which I showed you yesterday. However, मैं वहाँ जा नहीं पाई थी, but today was Friday so I thought of going there instead और dinner तो cancel ही हो गया था. Hey guys, back from the office. तो कल तो मैं जा नहीं पाई थी, वो जो मैंने आपको दिखाया था, there was a bazaar, गवाई बाज़ार right next to my house. तो कल तो मैं जा नहीं पाई थी, तो आज I thought ऑफिस से निकलते के साथ मैं ज़रा जाऊँ एंड लुक एट द भीड़. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, जाने के लिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, बट लकीली मेरी पार्किंग तो रेसिडेंशियल है. तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट वहाँ पे क्या हो रहा है. तो यहाँ पे मेजरली सब कुछ खाने पीने के से रिलेटेड ही है जो बिक रहा है. सो गाइस, सिंस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ही लंबी होती जा रही थी, इसलिए मैंने बाज़ार की क्लिप्स नहीं डाली हैं इस वीडियो में. मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं उसके थीम के बारे में बताऊंगी, व्हाट काइंड ऑफ वेंडर्स वर देयर उसके बारे में बात करूंगी और बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगी उस बारे में. सो आफ्टर द इवेंट आई जस्ट केम बैक होम, प्लेड विथ माई किड, हैड डिनर एंड वी जस्ट वेंट टू बेड. दैट वाज अबाउट इट गाइस. गुड मॉर्निंग गाइज, आज सैटरडे है और मैं आज एक ओपन डे में जा रही हूँ. एक्चुअली ओपन डे इज़ काइंड ऑफ there's a carnival as well as an open day of a school. तो मैं उस स्कूल में कुछ चीज़ें पता करना जा रही हूँ, जैसे इन केस अगर मुझे अपना बड़े बेटे को यहाँ पे पढ़ाना है, लाइक यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़े से हैं एडमिशन को लेकर कि इंटरनेशनल स्कूल्स में यहाँ पे कोटा होता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है एंड वेटिंग चलती है बहुत लंबी लंबी इंडियंस के लिए. तो उस केस में थोड़ा सा ये दिक्कत आता है कि
बच्चे यहाँ पे 3-3 4-4 साल वेट कर रहे हैं एक स्कूल में जाने के लिए, एंड इट इज़ प्रीटी वियर्ड कि ऐसा सिस्टम बन गया है यहाँ पे, स्पेशली वेस्ट मलेशिया में जहाँ हम लोग रहते हैं। हमारे आसपास जितने भी स्कूल्स हैं उसमें ये सिस्टम है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर थिंग इज़ कि बाकी सारे स्कूल्स बहुत दूर दूर हैं, विच इज़ लाइक अबाउट 45-50 किलोमीटर्स। और जहाँ पे लाने ले जाने के लिए जैसे इंडिया में बसेस चलती हैं, स्कूल बसेस होती हैं, यहाँ पे उस चीज़ का वो चीज़ है नहीं बेसिकली। यहाँ पे यूजुअली लोग ही छोड़ते हैं अपने बच्चों को, तो स्कूल बस वाला कोई सीन नहीं है यहाँ। सो अनफॉर्चुनेटली मैं ओपन डे वाले दिन का व्लॉग पूरा शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम बच गया था, एंड इट वॉज एक्चुअली नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग। तो फिर मैंने फ़ोन वोन खाली किया, तो फिर आई एम नाउ शूटिंग दैट। बेसिकली मैं यही कहना चाहती थी कि यहाँ पे कोई बसेस नहीं चलती हैं, स्कूल बसेस का कोई सीन नहीं होता है। मोस्टली कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो आफ्टर टेकिंग लाइसेंस दे स्टार्ट दिस बिजनेस ऑफ छोटा सा वैन में बच्चों को लाने ले जाने का काम करती हैं, बट दैट टू इज़ ऑल्सो लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप 45 किलोमीटर दूर बच्चे को स्कूल में डाल दो एंड दे विल कम एंड ड्रॉप एंड पिक द किड्स अप, बिकॉज इट्स वेरी फार अवे एंड इट्स नॉट रियली वर्थ इट। जैसे इंडिया में स्कूल बसेस होती हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से ना बहुत ही दिक्कत आती है कि हम जहाँ पे रहते हैं वेस्ट मलेशिया में, वहाँ पे मुश्किल से 2 या 3 स्कूल्स हैं और 2 या 3 इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, एंड उसमें सब में कोटा सिस्टम चलता है। स्पेशली इंडियंस उस एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी कुछ स्कूलों ने ना मोनोपोली है उन लोगों की, तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इंडियन बच्चों को सिर्फ 2 या 3 बच्चों को ही हर क्लास में होना चाहिए, बिकॉज द रीज़न इज़ क्वाइट एक्चुअली आई अंडरस्टैंड द रीज़न ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे एक्चुअली लीव द कंट्री एंड गो बैक टू इंडिया। जब बच्चा अबाउट 10th ग्रेड में होने को होता है तब वो लोग छोड़ के जाते हैं, बिकॉज ऑफ द रूल्स ओवर हियर कि आपको 18 साल का बच्चा होते के साथ आपको वो आपके वीज़ा से हट जाएगा, डिपेंडेंट पास से हट जाएगा, और ही हैज़ टू अप्लाई ऑन हिज ओन, ही हैज़ टू गेट कॉलेजेस ऑन हिज ओन। तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी ना कि डिसाइड कर पाना, एंड इसी वजह से पेरेंट्स मूव आउट अर्ली, एंड सो देयर आर अर्ली ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द स्कूल। और इसी वजह से स्कूल्स ऑल्सो डोंट वांट टू टेक इंडियंस, बिकॉज हम लोग के बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं एंड दे लूज द अपॉर्चुनिटी, और उनकी सीट्स खाली रह जाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर, जब उनका सबसे ज़्यादा अर्निंग का टाइम होता है तब के टाइम पे सीट्स खाली रह जाती हैं। तो दैट्स द रीज़न वाई दे हैव स्टार्टेड अ कोटा सिस्टम, जिसकी वजह से इंडियंस के लिए वेटिंग चलती है और एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वांट टू ब्रिंग माय चाइल्ड, माय फर्स्ट बॉर्न ओवर हियर टू ईस्ट मलेशिया, जहाँ एडमिशन टू एन इंटरनेशनल स्कूल ईजी है। एट द सेम टाइम बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, मुझे थोड़े डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, एंड ऑल्सो एक और बात है क्योंकि आई एम वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, आई विल हैव एन एज ओवर अदर पीपल, तो मेरे बच्चों को जल्दी एडमिशन मिल जाएगा। सो there are a couple of things to consider, but again there's one more issue that we are thinking about is उसका 1 साल वेस्ट होगा, because right now he is according to Indian curriculum he is actually on time, but यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स के इंटेक्स होते हैं सितंबर में, which means उसके 8 से 9 महीने वेस्ट होने वाले हैं। सो what he will do during that time we have no idea। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि if we want to literally waste 8 से 9 महीने, या we want to put him in some school in West Malaysia, थोड़े से efforts लगेंगे, but बाद में we can actually move him to the school nearby। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि डे जहाँ पे बच्चे का एडमिशन हो जाता है वहीं पे मूव कर जाते हैं। तो बहुत सारे सिचुएशंस हैं एंड वी आर एक्चुअली स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई वेंट टू एन ओपन डे टू फिगर आउट क्या फीस रहती है, क्या रहता है यहाँ का सिस्टम, what is the education, what is the curriculum that they are following, and etc पूछने गई थी, which was again a very nice school, मुझे बहुत अच्छा लगा, and I'm gonna leave you with a couple of clips from the school। सो मुझे तो ये बहुत पसंद आया स्कूल, और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर बच्चे को इधर डालना है या नहीं। फ़िलहाल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, and thanks for watching। See you again in the next video।
दिस वॉज अ ब्यूटिफुल लाइब्रेरी ऑफ द स्कूल और मुझे तो देखते ही इतना पसंद आ गया कि अभी एनरोलमेंट करवा दो मेरे बच्चे की, बट ऐसा हो नहीं सकता. इट विल बी another day for that. And if you like this video, please do not forget to like, share and subscribe for the support of the channel. Thanks for watching, guys. Bye.
और इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे, क्योंकि नेक्स्ट डे वॉज संडे और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ ग्रोसरीज खरीदी एंड ऑल दोज थिंग्स, सो आई डिड नॉट रिकॉर्ड इट. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, और कमेंट करना मत भूलिएगा. बाय बाय.